برے والا کے جو نوجوان ہیں جو پڑھنے والے ان کے لیے خوش قسمت یہ ہے کہ پورے 4 سال کا جو دورانی ہے اس کی ڈگری میں آپ کو ٹوٹلی HOB جو اسکالرشپ ہے وہ پرووائڈ کرے گا. برے والا دسترخوان کو انہوں نے اتنا ایکسپینڈ کر لیا ہے, اتنا بڑھا لیا ہے, اب گاڑیوں پر اور پراپر ایک ٹیم میں لوگوں تک کھانا پہنچایا جاتا ہے. 2018 میں انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کا سب سے بڑا حلالی پرچم بنا کر اور برے والا میں نمایاں کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا. السلام علیکم ناظرین, رازان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان. یہ ہے ہیومن آف برے والا کے نوجوان جو اپنی ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کر خدمت خلق اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہے. ان کا سلوگن ہے اچھائی کی مثال. 2017 سے انہوں نے اچھائی کا کام شروع کیا جس میں سلومن, ٹرانسجینڈر اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز کر کے اپنی اچھائی کی مثال کو برقرار رکھا. 2018 میں انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کا سب سے بڑا حلالی پرچم بنا کر اور برے والا میں نمایاں کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا. یہ برے والا کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خدمت کا جذبہ بڑھتا گیا تو پھر انہوں نے ایک افطاری کا انعقاد کیا جو صرف 300 بندوں پر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت یہ افطاری 1000 لوگوں کو کروائی گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس سلسلے کو پورا رمضان المبارک جاری رکھا, لیکن کچھ لوگوں کا فیڈ بیک آیا کیا بھوک لوگوں کو صرف رمضان میں ہی لگتی ہے. تو پھر انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک برے والا دسترخوان پروجیکٹ کا انعقاد کیا جس میں سال بھر لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے. 300 سے اس جو لنچ باکس تھا, جو کھانا تھا, اس کی شروعات کی گئی, لیکن آج ماشاءاللہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. برے والا دسترخوان کو انہوں نے اتنا ایکسپینڈ کر لیا ہے, اتنا بڑھا لیا ہے, اب گاڑیوں پر اور پراپر ایک ٹیم میں لوگوں تک کھانا پہنچایا جاتا ہے. یہ وہ کھانا ہے کہ اگر آپ بازار سے کھانا کھائیں تو تقریباً 80 سے 100 روپے میں عام کھانا ملتا ہے, لیکن یہ ہائیجینک حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل معقول قیمت میں 40 روپے میں کھانا گھر جیسا آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر انہوں نے لوگوں کو راشن بھی فراہم کیا, جس میں ان کا پروجیکٹ ای ہدیہ, جس میں مخصوص لوگوں نہیں بلکہ جس میں فکس لوگ ہیں ان کو یہ ہر ماہ راشن تقسیم کرتے ہیں. لیکن 2021 میں 3000 سے زائد لوگوں کو اس وقت تک یہ راشن پرووائڈ کر چکے ہیں. بالکل ایک منظم انتظام کے ساتھ ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں تمام جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, یتیم ہیں, یا جن کو یہ لگتا ہے یا جن کو یہ ملنا چاہیے, ان تک بالکل اندھیرے میں جا کے ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا ایک اور اقدام بتاتا چلوں, جیسے کہ کرونا وائرس کی 3rd ویو آئی, انہوں نے مساجد میں ایک سینیٹائزر, ڈیٹول یعنی کہ SOPs کا جو مکمل جس سے کرونا وائرس کی روک تھام کی جا سکے ایک پیکیجز بنا کے یہ برے والا میں فرسٹ ٹائم انہوں نے مختلف مساجد میں تقسیم کیا تاکہ اس بیماری کو روکا جا سکے. بلا تمہید ان کی جانب بڑھتے ہیں ہیومنا برے والا کے فاؤنڈر MSRM. جناب, آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ سب کچھ خدمت خلق, آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں, فوڈ دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, جو 300 سے سٹارٹ کیا, یہ آپ کے ذہن میں اچھائی کرنا, جو اچھائی کی آپ مثال قائم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو میں اگر کہوں کہ 4 سال پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں پتہ تھا آج ہم یہ کر رہے ہوں گے, تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج الحمدللہ جو امپیکٹ ہم کاز کر رہے ہیں, جو ہم پروجیکٹ چلا رہے ہیں, 4 سال پہلے بھی ہیڈ نو آئیڈیا ایٹ آل. جب ہیومنز برے والا سٹارٹ ہوا, ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ایز اے فوٹو جرنلزم پیج. جس طرح آپ آج لوگوں کی کہانیاں شیئر کر رہے ہیں, ہم نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا جس میں انسنگ پرسنالٹیز آف برے والا ان کو ہم فیچر کرتے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمیں رسپانس تو مل رہا ہے, وائی ناٹ یوز اٹ ان اے پازیٹیو وے. کیوں نہ ہم جو انرجیز اپنی لگا رہے ہیں وہ ہم کمیونٹی جو ہماری ہے, جب ہم نے دیکھا ان کی دردناک سٹوریز ہم نے دیکھی, جب ان کی ہارش ریالٹیز ہم نے دیکھی, تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ یار ان کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. تب دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اچھائی کی مثال بن کے دکھائیں گے, اور جو ہمارا جو پیارا شہر برے والا ہے بیسکلی اس کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم اپلفٹ کریں گے, اور جو ہماری یوتھ کے
पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास जो पोटेंशियल है, उसको हम एक अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे। तो दैट वाज़ द पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमायाँ ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, और पूरी टायरलेस एफर्ट्स के साथ-साथ हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं और अपलिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा इंसान वही है जो किसी की भूख प्यास को महसूस करे, किसी के दुख दर्द को ना समझे। आप ये सब माशाल्लाह कर रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है ये करके? जी, ये बिल्कुल इसकी हमारी इंस्पिरेशन बेसिकली जो है वो हमारे सूफिया कराम हैं। एक कौल है कि बाबा फ़रीद का कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फ़रीदा टुक। ये हमारी जब हमने देखा कि यार भूख बेसिकली एक इशू है। भूख सिर्फ़ ये नहीं है कि बंदे को के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। भूख से माशरे के अंदर और भी काफ़ी सारे जराइम जो हैं वो पैदा होते हैं। जब किसी के पास जब भूखा हो, किसी के पास खाना ना हो, तो वो जुर्म भी करता है जाके, वो माशरे के अंदर इंतशार भी फैलाता है। तो हमने सारी चीज़ों को रूट वैल्यू जब हमने आइडेंटिफाई किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ये काम स्टार्ट हुआ। और इसमें हमें कोई फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हमारा पैशन है। एक बंदे को खिला के जो खुशी मिलती है वो अनपैरेलल्ड है बिल्कुल। और लोग पूछते हैं कि रमज़ान के अंदर आप सारा दिन इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर राशन भी पहुंचा रहे हैं और खाना भी पहुंचा रहे हैं। मज़े की बात, हमें लोगों को खिलाते खिलाते अपनी भूख जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। हमें भूख नहीं लगती इतनी गर्मी के अंदर, हमें रोज़ा नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों तक हम जब खाना पहुंचा देते हैं। तो ये एक खुशी है। असल खुशी बिल्कुल यही है, असल सुकून बिल्कुल यही है जब आप किसी के दुख दर्द को महसूस करते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ एचओबी ह्यूमन और बुरेवाला के डायरेक्टर तलाल चौधरी की जानिब। आपका एक प्रोजेक्ट है EDU कनेक्ट, ये क्या है बेसिकली, इसका पर्पस क्या है और ये क्या काम करता है, ये आप थोड़ा सा नाजरीन को बताइए। देखें वैसे भाई, जिस तरह बुरेवाला आपको पता है कि सिटी ऑफ एजुकेशन है, और यहाँ से मुतअद्दिद बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे तकरीबन, आप जिस जगह पे भी चले जाएं आपको बुरेवाला का कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे शख्स मिलेगा। बदकिस्मती से बुरेवाला के अंदर इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिले कि उनकी करियर काउंसलिंग इस टाइप की हो कि हम यहाँ से स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें किसी ना किसी तरीके से, कि वो यहाँ से यूनिवर्सिटी के एडमिशन की इंफॉर्मेशन, एडमिशन के हुसूल और एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी एडजस्टमेंट, ये 3 बहुत बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी हायर एजुकेशन के लिए जब एक स्टूडेंट घर से निकलता है। हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह थे जिनके पास इन तीनों में कोई एक स्टेप जो है वो पीछे रह जाता है बच्चा। अब हम लोगों ने ये किया कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ से बेसिकली अगर कोई बच्चा हमारे पोर्टल पे जाता है, बड़ा आसान इसका तरीका है कि हमारे पोर्टल के ऊपर जो है वो बच्चा एक एप्लीकेशन देता है कि मैं इस सब्जेक्ट में जाने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद हूँ। उसके बाद हमारा उन यूनिवर्सिटीज़ का उसको एक लिंक आ जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में आप करेंगे, वो अपनी वेरिफिकेशन कर सकता है। हमारा सिस्टम ये है कि मोर देन 65 पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे एम्बेसडर्स जो बुरेवाला के स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल्ड है हमारे पास, वो हमारी टीम का पार्ट है। वो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट को जो भी यहाँ से उस एप्लीकेशन को मूव करता है उस पर उस बच्चे से खुद रब्ता करते हैं, उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन देते हैं आपका टेस्ट कब होगा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, आपने किस में अप्लाई करना है, अप्लाई का तरीका क्या है। बच्चा जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है कि आपने इस तरह आना है, ये करना है। बिल्कुल जब उसका हर चीज़ एडमिशन हो जाता है उसके बाद उसकी हॉस्टल की एडजस्टमेंट्स हैं, उसकी बाकी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा उसकी करियर काउंसलिंग हो रही है और प्रॉपर तरीके से बुरेवाला के बच्चे को फैसिलिटेट किया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए। इसके लिए एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बुरेवाला में, ये पूरे पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला वाहिद प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन्स ऑफ बुरेवाला के प्लेटफॉर्म से जो है वो इसका इनेकाद हुआ। कहीं पे भी ये चीज़ इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रही। जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत बहुत पैसा आपसे चार्ज करते हैं और इसमें मज़े की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास 8 के करीब रजिस्टर हैं जो बुरेवाला के स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाकी हमारे सारे जिस्बा खैर सगाली से काम हो रहे हैं, EDU कनेक्ट के तहत भी मोर देन इंशाल्लाह 5 से 6 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इस साल के जो है 4-4 साल के लिए बच्चों की पूरी डिग्री के लिए जिसको आप कह लें वो हमारे MOU साइन हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ईद के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं। इंशाल्लाह बुरेवाला के जो पढ़ने वाला नौजवान होगा उसको इंशाल्लाह स्कॉलरशिप्स भी जो है वो ह्यूमन्स ऑफ बुरेवाला की तरफ से एक अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU साइन हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलेंगे। HOB का ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम इकदाम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, रहनुमाई करने वाला नहीं होता, वो एडमिशन नहीं लेते। इसी वजह से आगे उनको हॉस्टल, जैसे इन्होंने बताया कि उनका A to Z यानी कि एडमिशन की गाइडलाइन से लेके उनको हॉस्टल दिलवाने तक, उनके डिपार्टमेंट तक की रसाई, ये इनकी जो EDU कनेक्ट है जो इनका प्रोजेक्ट वो कर रहा है। और उसके साथ साथ यानी कि उन्होंने बताया कि बहुत अहम जो
मैं कहता हूँ बहुत ही एक बुरे वाला के जो नौजवान है जो पढ़ने वाले उनके लिए खुशकिस्मत ये है कि पूरे 4 साल का जो दुरानी है उसकी डिग्री में आपको टोटली एचओबी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आपका माशाल्लाह कोविड-19 की सूरत हाल में 2021 में पाकिस्तान की टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशन में नाम आया। इसकी क्या वजह, आपने क्या ऐसे-ऐसे इक़दामात किए कि आपका उन 15 ऑर्गेनाइजेशंस में नाम आया? देखें अवैस भाई, अल्लाह की मेहरबानी से सबसे पहले तो ये है कि कोविड-19 जब सूरत हाल पैदा हुई 2019-20 के दरमियान में, तो सबसे पहले तो हमें ये इशू था कि लॉकडाउन लग गए, जितने मजदूर दिहाड़ीदार तबका था वो एक बंद हो गया, एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल अनसर्टन सी सिचुएशन जो थी वो पैदा हो गई। अब चूंकि हमारे ये चीज़ें चल रही थी, ज़ाहिर बात है भूखा तो उस टाइम पे भी वो घर में होंगे। हमने इस चीज़ को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बुरे वाला के अंदर इंट्रोड्यूस कराया कि एक डाटाबेस बनाया जाए जिसमें फैमिलीज़ की जो है वो वेरिफिकेशन हो। हमारा टीम मेंबर जाके उस सूरत हाल में जब लोग कह रहे थे कि आप घरों में रहें, अपने आप को जो है वो बिल्कुल आइसोलेट कर लें, हम लोग हिफाजती तदाबीर पे अमल करते हुए लोगों के घरों तक गए, उनको वेरीफाई किया, उन लोगों को देखा कि जिनका कमाने से इस वक्त जो ये पीरियड चल रहा है इनका कारोबार वाकई रुक गया। उसमें आपके बहुत सारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनमें आपके रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनमें आपके फिर इसी मौके पे ना हम बेवा को भूल सकते हैं, ना हम उस घर को भूल सकते हैं जिसमें यतीम बच्चे हैं। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले अपना डाटाबेस तैयार किया, क्योंकि हमें पता था अगले दिनों में लॉकडाउन मज़ीद सख्त हो सकता है। उन दिनों में वेरीफाइड फैमिलीज़ को हमने जब किया, उनको वेरीफाई किया, उनका एक डाटाबेस 3000 प्लस फैमिलीज़ का एक डाटाबेस हमने तैयार किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बुरेवाला के अंदर। 3000 फैमिलीज़ को जब रजिस्टर किया, उसके बाद उसकी इलाकाबंदी की गई, प्रॉपर उसकी टीम्स बनाई गई, फिर वी वर रेडी। अब मेन चीज़ थी कि अब इनको हमने करना क्या है। हमारा रिस्क के साथ कोलैबोरेशन हुई, बुरे वाला ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत से मुखय्यर दोस्त हज़रात फैमिलीज़ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3000 प्लस राशन फैमिलीज़ को जो है वो डिलीवर किया, मुख्तलिफ फेजेस के अंदर किया। एक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मसाजिद की सैनिटाइजेशन और उनको इस चीज़ों को प्रोवाइड करने का था, क्योंकि देखें मजहबी फरीज़े का अंजाम जो है ये आप किसी का बेसिक राइट है, आप उसे नहीं छीन सकते। और हमारे रमज़ान शरीफ था, उसके बाद बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो मसाजिद में जाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी मसाजिद इस तरह है जिसको गवर्नमेंट ऑन नहीं करती। तो ये हमारी एक समाजी बल्कि मजहबी जो है वो फरीज़ा है हमारा कि हम इसको मजहबी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी उन मसाजिद का ख्याल रखें। उन मसाजिद के अंदर हमने देखें बहुत ज़्यादा ना आप कर सकें, कम से कम कुछ ना कुछ तो आप करें। उनके लिए हमने जो था वो एक आरबी के साथ एक हमारा प्रोजेक्ट था, हमने उनके साथ एमओयू साइन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बुरे वाला की सिर्फ मसाजिद नहीं, आपके नवाही चकूक की मसाजिद जो साथ हैं, कुछ ये बस्तियों की मसाजिद, इनके अंदर एक प्रॉपर पैक बना के जिसमें आपकी ब्लीचेस थी, आपका ये हार्पिक्स थे, आपके हाथ धोने के साबुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सैनिटाइजर्स की ज़रूरत थी, ये चीज़ों की फराहमी उनको तक दी गई। और ये मिलकर फाउंडेशन ने अभी रिसेंटली जो था पाकिस्तान की उनको रैंकिंग की, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे ये वाले काम देखते हुए जो है वो 15 टॉप रैंक जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर आया। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोई वो नहीं है, एक हमने माइलस्टोन अचीव नहीं किया इसको, अभी स्टिल हम कहते हैं, क्योंकि अभी इंशाल्लाह सितारों से जहान आगे और बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह जिसको हमने अभी अचीव। आपका जो दस्तरखान का प्रोजेक्ट है उसको किस तरह आप चला रहे हैं, और उसके साथ जो आपका ई हदिया प्रोजेक्ट वो बेसिकली क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, दस्तरखान बेसिकली हमने एक ऐसा मॉडल इस्टेब्लिश किया है कि कोई भी वहाँ पे आके सिर्फ 30 से 40 रुपए के अंदर घर जैसा खाना खा सकता है। हमारा इस तरह नहीं है कि एक ही खाना रोज़ बन रहा है, जिस तरह घर में मुख्तलिफ खाने बनते हैं, हमारा हर मेन्यू बनता है हर वीक का, और फिर वो रोटेट होता है। दस्तरखान जब आम दिनों के अंदर कोविड के दिन नहीं थे तो हमने सीटिंग खोली हुई थी, 30 लोग एक वक्त पे आके बैठ के खाना खा सकते थे, प्लेट्स थी, खुद खाना लेते थे आके, और 30 से 40 रुपए में जितना वो खाना, मतलब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितना खाना चाहें वो खाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 60,000 लोगों तक अभी तक उसको खाना पहुंचा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड जब आया तो कुछ महीने हमें बंद करना पड़ा, मगर फिर हमने जब लोगों ने रिक्वेस्ट की और जो हमारे बेसिकली बेनिफिशरीज थे जिनके लिए दस्तरखान चल रहा था, रिक्वेस्ट की, तो हमने वन विंडो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए वन विंडो से लोगों को खाना पहुँचा। फिर हमें लोगों ने कहा यार कि एक दस्तरखान जो है आप मज़ीद दस्तरखान भी बनाएं, क्योंकि एक दस्तरखान से पूरे सिटी की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इंस्टेड के हम दस्तरखान और जगह पे बनाते, हमने सोचा कि वाई नॉट दस्तरखान को ही हर जगह लिए फिरें। फिर हमने मील्स ऑन व्हील्स का आगाज़ किया। हमारी हुकूमत ने अभी पिछले महीने ही एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि हर सिटी के अंदर मील्स ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुकूमत से भी पहले बुरेवाला के अंदर लॉन्च कर दिया है, और 30,000 लोगों ने इस जो आपके हमारे पीछे खड़ी हुई है फूड वैन, ये मुख्तलिफ हंगर इनसिक्योर एरियाज़ में ऐसे लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो टारगेटेड हमारे लोग हैं, वहाँ तक ये गाड़ी पहुँचती है और पैक्ड फूड
फूड पहुंचाती है। पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम जितने भी SOPs हैं उसको हम फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल घर जैसा खाना, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमारी 3 जो है वो वर्ड्स भी पीछे लिखे हुए हैं, सेहतमंद, सस्ता, म्यारी। ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं बेसिकली दस्तरखान की। और आपने बात की ई हदिया की। ई हदिया क्या है? ई हदिया बेसिकली हमने राशन देने के सारे प्रोसीजर को डिजिटलाइज कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। राशन देने का अमल तो हमारे सूफिया कराम ने शुरू किया था बरे सगीर के अंदर, फिर हमारी फैमिलीज़, हमारे हम लोगों ने देखा लोग राशन देते हैं, ठीक है। मगर इसमें ये आ जाता है कि कई दफ़ा ऐसे लोगों तक राशन पहुंच जाता है जिनको ज़रूरत नहीं होती, वो पाइल अप करने लग जाते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों तक लेने लग जाते हैं, और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वहाँ तक राशन पहुँचता नहीं है। तो ई हदिया एक ऐसा डिजिटल एक सिस्टम है कि हम वेरीफाइड फैमिलीज़ को बुरेवाला में उनको एक ई हदिया कार्ड इशू करते हैं। फिर जो हजरात डोनेशंस पहुंचाना चाहते हैं, जो कि राशन पहुंचाना चाहते हैं, हम एक फैमिली को एक डोनर को एक फैमिली 6 माह के लिए अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और वो उनकी कफालत लेती है, डोनर लेता है उस फैमिली की, और फिर हर महीने उनके घरों तक, उनकी दहलीज तक राशन पहुंच जाता है। स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि 30 दिन में इस बंदे ने पहले राशन तो नहीं ले लिया। दूसरा ये कि जैसे ही वो उनका स्कैन होता है तो डोनर को भी मैसेज चला जाता है जी कि आपने जो राशन डोनेट किया था वो पहुंच गया है, और वो हमारे डाटाबेस के एंट्री भी हो जाती है कि इस फैमिली को राशन पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन गोइंग प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस पूरे एरिया के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ीद ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मज़ीद लोगों के साथ मिलके ई हदिया के कार्ड्स भी मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके ये कार्ड्स का सिलसिला जो है अब आप देखेंगे कि और बढ़ेगा इंशाल्लाह बुरेवाला के अंदर। अच्छा जी, आपके ह्यूमन और बुरेवाला के जो फ्यूचर गोल्स हैं, नेक्स्ट आपकी टीम क्या इकदाम करी, इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं, वो थोड़ा सा बताइए। जी बेसिकली अब बुरेवाला के अंदर हमने ये जो फूड का जो सारा प्रोसीजर है ये तो चलता रहेगा, और हमने इसको ये आइडेंटिफाई किया है कि ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम कम्युनिटी को बेसिकली अब खुद मुख्तार बनाएं, खुदकार बनाएं शहर को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इन कमिंग डेज़ हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके और ख़ुद एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करेंगे जिससे बुरेवाला के जो लोग हैं, जो बुरेवाला की यूथ है, वो खुद मुख्तार हो, वो खुदकार हो। उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज, और एक ऐसा एक पोर्टल एक डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे ग्राउंड लेवल तक जो लोग हैं उनको, एक कम्युनिटी को हम अपलिफ्ट कर पाएंगे। और ये खाना खिलाने का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। हम अब बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल है कि अब लोगों को हम मछली पकड़ना खुद भी सिखाएं और एक इम्पैक्ट क्रिएट करें इसमें। और ये माशाल्लाह बुरेवाला के लिए बहुत एक अहम और अहम इकदाम कर रहे हैं। तो लास्ट पे आप नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? ये नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि ह्यूमंस ऑफ बुरेवाला, हमारे नाम से ही जाहिर है कि हम एक पीपल पावर्ड मूवमेंट हैं। हम बुरेवाला से हैं और बुरेवाला के लिए हैं। ये फाउंडेशन आपकी अपनी है, किसी की ज़ाती फाउंडेशन नहीं है, ये लोगों की है, ये बुरेवाला शहर की है। हमने हमेशा 2017 से आज तक अपने शहर और अपने लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। आप भी इनिशिएटिव में हमारा हाथ बटा सकते हैं, या चाहें तो जो हमने यहाँ पे सारा मॉडल बनाया है इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। आप खुद करना चाहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी फाइंडिंग्स, हमारी रिसर्च हमेशा अवेलेबल है। हम तो खुश होंगे कि और लोग दस्तरखान्स का नेटवर्क बनाएं, फूड वैन्स का नेटवर्क बनाएं, लोगों को हमारी जो कम्युनिटी है वो अपलिफ्ट हो। या फिर अगर आप हमारी टीम में पार्ट लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डोनेट। हमारी वेबसाइट www.humansofburevala.com पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पेजेस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप भी अच्छाई की मिसाल बन सकते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद आपके जो ख्यालात हैं या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है HOB, इसमें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। जी नाज़रीन, आप भी इनके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते। मुखय्यर हजरात से मेरी अपील है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप भी इस नेकी के सफ़र में जो अच्छाई की मिसाल है आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बुरेवाला में जो सूरत हाल चल रही है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त का खाना खाकर सोते हैं। तो हमें चाहिए दूसरों के लिए भी, दूसरों के दुख दर्द को भी जिस तरह ये महसूस कर रहे हैं हमें भी महसूस करना चाहिए। हमें भी चाहिए उनके दुख दर्द में शरीक हों, उनके रिज़्क़ का वसीला बने और इनके साथ बने अच्छाई की मिसाल। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।